flame and fuel, and coal and petroleum. Now our next chapter is microorganisms. Friends in poem means here it's animal. So everyone mostly we know about the microorganisms, and people thought is that they just create a problem. They just create a spread a diseases. No, it is not. They are our friends also. Okay, our full body is present. In our full body, the microorganisms are there. Okay, so microorganisms are the smallest organism which cannot be seen by a naked eyes. We need a microscope to study. Okay, we need a microscope to see them. Okay, we have to study about them, then we need a microscope to see them. After that, the person who study about that, okay, the person who study about that is called a microbiologist, and the study which is done about microorganisms is called microbiology. ठीक है, जो पढ़ाई की जाती है उसके बारे में उसको माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, एंड द पर्सन हु स्टडी अबाउट इज कॉल्ड अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट. सो दे आर ऑफ वेरियस टाइप्स. Microorganisms are of various types like bacteria, algae, fungi, and virus, protozoa. They are the various kind of microorganisms, and the most important thing that microorganisms some are useful for us and some are harmful for us. Okay. Microorganisms, they can be only studied or can be seen with the help of microscope. After that, microbiology, the study of the microorganism, and then micrologist means microbiologist, the person who study about the microorganisms. Now we will study history of microbiology. There was a person whose name is Antony van Leeuwenhoek. He was the father of microbiology. So what happened? He was first not a scientist. He was just a business by profession. So he wanted to increase the quality of his thread. So for creating the quality of his thread, he started making the lens. While doing the experiment for creating a lens, what he make a microscope, and accidentally उसको क्या मिल गए? Microscope. So he was the first person who invented the microscope. Okay, he was the first person who invented the microscope. So after that, there were the many person who work on that and the change, and there are the many type of microscope also. But how was it? जब इन्हें थ्रेड बनाने की कोशिश करी और कोशिश करने में इन्हें माइक्रोस्कोप फाइंड करा, तो इनमें क्या जब माइक्रोस्कोप बना तो एक्सीडेंटली क्या बन गया, कैसे माइक्रोस्कोप बन गया, और एक्सीडेंटली व्हाट ही फाइंड अ माइक्रोब्स, और क्या बना लिया हमने? माइक्रोस्कोप बना लिया. So it was the history of microbiology. Now we will study about types of microorganisms. Okay, these microorganisms are also divided into following groups: fungi, bacteria, protozoa, algae, and virus. Okay, viruses. These are divided, और उनको भी कैटेगरी के हिसाब से the work which they do उसके हिसाब से उनको क्या किया गया है? कैटेगराइज किया गया है. Okay. And these are also found in different, some are helpful for us and some are harmful for us. Now we will study the first, that all microorganisms in detail. First one is fungi. Okay, they are the group of single cell or multi-celled organisms. About cell we are going to study in upcoming chapters, but present you should know a single cell or multi-cell. तो बहुत सारे सेल एक साथ जुड़ते होते हैं, तो क्या फॉर्म होता है? They form a fungi. Okay, they form a fungi. And for example, yeast, molds, and mushroom. Everyone has seen the cotton type structure on the bread और द चपातीस. ठीक है, जो कुछ दिन से यूज नहीं हुई है और उनको एक अगर पैक जगह पे रख दिया हो तो व्हाइट कलर के, जिसको हिंदी में फफूंद भी कहते हैं कई लोग घर पे, तो फफूंद लग जाता है, वो क्या होता है? फंगी होती है. ठीक है ना. सो ये फिक्स नहीं है. इट इज नॉट ऑलवेज सेट कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सारे माइक्रोस्कोप से देखे जाए. कुछ ऐसे होते हैं जिनको अपन क्या कर सकते हैं? नॉर्मल आइज से भी अपन उनको देख सकते हैं. ओके, दे लाइक यू हैव सीन द मोल्ड्स एंड मशरूम्स, एंड दे आर मोस्टली ग्रोन
इन अ कोल्ड रीजन और डेजर्ट, मतलब ऐसा है कि ये डार्क जगह पे ज़्यादा जल्दी ग्रो होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, डार्क प्लेस, डार्क प्लेस मतलब जहाँ पे धूप कम हो, बट ऐसा नहीं है, ये कोल्ड रीजन और डेजर्ट रीजन्स में भी क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। सो these they are we can say that they are the group of single cell or multi cell organism, ठीक है ना। इनको क्या कह सकते हैं अपन, सिंगल सेल और मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, ओके। और भी इसके साथ ये है कि ये इनका जो सिंगल फॉर्म रहता है उसको फंगस बोला जाता है, और फंगस बोला जाता है। एंड आफ्टर दैट दे आर नॉट यू फाइंड अ सिंगल, वो एक साथ बहुत ही मोस्टली क्या होते हैं, ग्रुप में रहते हैं। और मशरूम को एज अ वेजिटेबल भी यूज किया जाता है, ठीक है। खाने के पर्पज के हिसाब से भी मशरूम को क्या करा जाता है, एज अ वेजिटेबल फॉर्म में भी यूज किया जाता है। Now we will study the second thing that microorganisms, that is bacteria, and it is said it is the oldest and smallest organism. Okay, it is a oldest and smallest organism on our planet. सबसे पहले organism अर्थ पे आया वो बैक्टीरिया ही था, ऐसा माना जाता है। And they are unicellular. Okay, they are single cell organism, and they are some are harmful and some are useful for us. Okay, so there is like to be clear, it is used for forming a कर्ड, ठीक है। कर्ड बनता है, जो दही बनता है, तो इस बैक्टीरिया की हेल्प से ही कर्ड, बटर, चीज ये बनते हैं, ये सारी चीजें बनती हैं। सो दीज बैक्टीरिया आर वेरी दीज सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर स्टमक आल्सो व्हिच हेल्प अस इन द डाइजेशन प्रोसेस आल्सो। सो दीज बैक्टीरिया आर, सम बैक्टीरिया आर गुड फॉर अस एंड सम बैक्टीरिया आर हार्मफुल फॉर अस। Now we will study about protozoa. Now these are unicellular organisms that behave like animal and belong to a group called protozoa. Okay, for example, algae. Now what is happening here? These are, ठीक है, ये क्या होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल रहता है, so they do the process of photosynthesis also and behave like the animal. Okay, they behave like an animal. So protozoa एक unicellular organism है और जो ये रहते हैं and behave like an animal, but they do a process of photosynthesis and they prepare the food. There are these the single cell which perform all the major functions. Okay, these are the single cell which perform all the major function, and like paramecium, amoeba, all comes under the category of protozoa. Now we will study about algae. I think also everyone has seen, मैं देखा होगा कि बार दीवारों पे या थोड़ी सी मॉइस्ट वाली होती है, ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है, ठीक है। वो पत्तियों टाइप, मतलब काई जैसी दिखती है, ठीक है ना। तो जो काई जैसी दिखती है उसको क्या बोला जाता है, एल्गी। व्हाट वी से, एल्गी। सो दे आर अ ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। सिंपल प्लांट, एकदम प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं, क्लोरोफिल। Do you know about the chlorophyll? Chlorophyll is a green pigment which is present in a plant to and helpful to prepare a food, ठीक है। Without chlorophyll plant cannot prepare the food, so it is green in color, ठीक है। ये ग्रीन कलर का रहता है, और भी कलर के पिगमेंट्स रहते हैं। So in some plant it is for a green color, ठीक है। तो ये काई जो होती है ना उसमें रहता है, और काई कैन बी अ सिंगल unicellular organism or a multicellular organism. Seabeds, blue green algae are the example of एल्गी। ओके, तो क्या होता है, एवरीवन जो स्लिप खाती हुई देखते तो बहुत सारे में क्या रहते हैं, एल्गी को भी यूज किया जाता है। ओके, दिस एल्गी आर आल्सो यूजफुल, आर यूज्ड इन मेकिंग आवर टूथपेस्ट। ओके, जो टूथपेस्ट बनता है उसमें भी एल्गी का यूज किया जाता है। सो वी कैन से दैट देयर आर अ ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन अ क्लोरोफिल, ओके, एंड यूज फॉर डिफरेंट पर्पस आल्सो। नाउ we will study about the virus. Okay, everyone know about this. नहीं भी था तो now we know about it. So virus, they viruses are also microscopic. ये इतने छोटे रहते हैं कि we need a compound microscope to see them. Okay, we need a compound microscope to see them because they are smaller than bacteria also. And they live in, and these are considered, they do not survive in the normal atmosphere. What happens, they need a living being. Okay, they need a plant, they need an animal to survive in them. Okay, they stay on any other. Okay,
So for example, flu virus, cold virus, HIV है, human immune deficiency virus, ठीक है ना। तो ये जो वायरस रहते हैं, so what they do, they spread the diseases, they spread the diseases. Okay, so viruses are smallest microorganisms we can say, ठीक है। और उनको क्या चाहिए रहती है, एक लिविंग बॉडी चाहिए रहती है, लाइक वो एनिमल की हो या वो प्लांट की हो, टू सर्वाइव। ओके, और इट इज नॉट कंसीडर एज अ लिविंग थिंग एंड नॉट कंसीडर एज अ नॉन लिविंग थिंग, क्योंकि उसको सिर्फ कोई चीज चाहिए जिस पर वो क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। और जो बीमारियां हैं लाइक पोलियो, HIV, these all are spread due to viruses. Now we will study, ये पढ़ा कि माइक्रोऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप के होते हैं। Now we will study about beneficials of microorganisms, how they are beneficial for us. They are harmful plus they are beneficial for us. The first thing we will is about the commercial use. Commercial use means for the business purpose also. So everyone know about the alcohol, okay, like wine and there are many. So what happened? What they do the microorganisms? Microorganism means yeast. ठीक है ना। तो क्या होता है कि ग्रेप्स हो गए या फिर और फ्रूट्स हो गए, तो इनको क्या किया जाता है, एक लंबे से बड़े से बॉक्स में बहुत लंबे टाइम के लिए बंद कर दिया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस ईस्ट वर्क, ओके, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस ईस्ट वर्क एंड द प्रोसेस वेयर दैट शुगर व्हिच इज प्रेजेंट इन fruits that convert, ठीक है, that convert into alcohol and that process is called fermentation, ठीक है। that process is called fermentation. The process in which the sugar convert into alcohol is called a fermentation, is called a fermentation, ठीक है। fermentation तो अल्कोहल तैयार हो गई, तो उसको कहाँ यूज होने लगे, वो इसके फॉर्म में यूज होगा, commercial use में। Now the second one, medicinal use. So what happened, our body, some of the microorganisms work as a antibiotic, ठीक है। वो किस तरह यूज होता है, एंटीबायोटिक। तो उनको बनाने के लिए, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, उनको मेडिसिनल यूज के लिए क्या किया जाता है, एंटीबायोटिक बनाई जाती है। और फंगस जैसे बैक्टीरिया को क्या किया जाता है, फंगस जैसे माइक्रोऑर्गेनिज्म को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। आफ्टर दैट माइक्रोब्स इन आवर बॉडी, सो बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड बैक्टीरिया इज अ पार्ट ऑफ आवर इंटेस्टाइन। सो द फूड विच वी ईट, ठीक है, जो खाना क्या करते हैं हम खाते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है, ये बैक्टीरिया यूजफुल होता है। सो दिस इज द थर्ड बेनिफिशियल यूज। और भी बहुत सारी जगह अलग अलग क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। आफ्टर दैट डोमेस्टिक यूज, इन डोमेस्टिक यूज वी कैन से घर में जो दही बनाया जाता है, ओके, curd is prepared or a buttermilk prepared or a cheese prepared. So which bacteria is used, lactobacillus bacteria is, which bacteria is lactobacillus. So what happened that to convert the milk into a curd, so this bacteria is useful, ठीक है ना। इसको क्या किया जाता है, यूजफुल होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को यूज किया जाता है किसमें, कर्ड बनाने के लिए। सो डोमेस्टिक यूज में आ जाता है। आफ्टर दैट माइक्रोब्स एंड बेकरी, ठीक है, जो ये केक आते हैं और भी चीज़ें जो आती हैं बेकरी से, तो उसमें क्या किया जाता है, प्रोसेस, सपोज केक बनाना रहता है, तो फ्लोर लिया, शुगर ली, उसके बाद उसमें पानी डाला और ईस्ट मिक्स किया, ओके, ईस्ट इज ऑल्सो माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो जब हमने ईस्ट मिक्स किया, तो ईस्ट मिक्स करने के बाद क्या होता है, उसमें उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ टाइम के बाद छोड़ने के बाद इट फॉर्म्स अ बबल्स, ओके, इट फॉर्म अ बबल्स। और जो केक होता है वो एकदम स्पंजी होता है। द केक इज जस्ट टोटली प्रिपेयर और जस्ट टोटली गेट रेडी इन द फॉर्म ऑफ स्पंज, एकदम स्पंज होता है। तो हाउ इट हैपन, इट जस्ट डन बाय द ईस्ट, ओके, वो किसकी हेल्प से होता है, ईस्ट की और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यूज से होता है। आफ्टर दैट माइक्रोब्स एज फूड, ठीक है, खाने के लिए भी। तो कुछ क्या होते हैं, फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, दे आर अ गुड सप्लीमेंट, ओके, आपके बॉडी में प्रोटीन या कोई चीज़ की कमी होगी, ये क्या करते हैं, पूरा करते हैं, इसलिए इसको एज अ फूड भी लिया जाता है, ओके। टूथपेस्ट बनाने में इसको यूज़ किया जाता है, और उसके बाद फिर टूथपेस्ट बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। और साथ जो ये नाइट्रोजन साइकिल होती है, ठीक है, इसकी नाइट्रोजन साइकिल अपन डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसको भी और न्यूट्रिएंट्स को फिर से रिप्लेनिश करने के लिए क्या किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का
यूज किया जाता है. सो देयर आर many यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हैज बीन हेल्पफुल फॉर अस. नाउ वी हैव लर्न, ठीक है, और भी बहुत सारी जगह हेल्पफुल होते हैं, ठीक है. और जो वैक्सीन रहती है, ठीक है, वैक्सीन होती है जब आप चाइल्डहुड में रहते हो, आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, तो आपके बचपन में भी यू कैन सी योर वैक्सीन कार्ड ऑल्सो, वैक्सीन जो इंजेक्शन लगते हैं दैट ऑल्सो यू कैन सी. तो उसमें क्या होता है, आपके बॉडी में ऑलरेडी क्या होती है, एंटीबायोटिक्स को डाल दिया जाता है, जिससे व्हेन द वायरस एंटर इन योर बॉडी लाइक द पोलियो, स्मॉल पॉक्स और येलो फीवर, सो दीज योर बॉडी इज रेडी टू फाइट फ्रॉम दिस वायरस. इसलिए उसको आपकी चाइल्डहुड में क्या किया जाता है, वैक्सीन को लगा दिया जाता है. तो देयर आर मैनी बेनिफिशियल्स, ठीक है, मैनी बेनिफिट्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और भी फायदे रहते हैं इनके, ठीक है ना. जैसे आपके घर में जो इडली डोसे तैयार किए जाते हैं और मदर आर प्रिपेयरिंग दैट, तो उसमें भी क्या होता है, जो लंबे टाइम के लिए उसको रख दिया जाता है. सो वाई सो दैट द थिंग्स विच यू आर गोइंग टू प्रिपेयर शुड बी गेट स्पंज, ठीक है ना, वो स्पंज बन सके. और भी बहुत सारे इनके फायदे हैं. यू कैन सी, आप अपने आसपास भी देख सकते हो कि इसके कितने सारे आपको फायदे मिलते हैं. Commercial use you understood about, medical use also, microbes in our body, domestic use, microbes and bakery, microbes as food and some other things as a food supplement also we have studied. टूथपेस्ट बनाने में काम आता है. ये सारी चीज़ें अपन ने ऑलरेडी इसमें कवर कर ली है. नाउ आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये अपन के लिए कहाँ कैसे हार्मफुल होते हैं वो भी अपन इसमें पढ़ने वाले हैं. और हाउ व्हाट अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल ऑल्सो वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर ओनली.